Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to talk about urea cycle. So today's audio will be about urea cycle. So let's get started. As we know, urea is the end product. As you know, urea is the end product of protein metabolism, amino acid metabolism. Nitrogen of amino acids converted to ammonia, as described above, is toxic to the body. It is converted to urea and detoxified. As such, urea accounts for 80 to 90% of nitrogen containing substances excreted in urine. So, urea is the end product of protein metabolism, and uric acid end product of purine metabolism. There's a difference. So, amino acid metabolism, protein metabolism, urea is the end product. The nitrogen of amino acids converted to ammonia, yes, is toxic to the body. It is converted to urea and detoxified. As such, urea accounts for 80 to 90% of the nitrogen containing substances excreted in urine. Urea is synthesized in liver. You have your liver. Liver synthesizes urea. Liver synthesizes your urea. Okay, and it transports to kidney for excretion in urine. So urea it synthesizes liver, and it transports to kidney for excretion in urine. So urea is synthesized in liver and transported to kidneys for excretion in urine. Urea is synthesized in liver and transported to kidneys for excretion in urine. So urea is synthesized in liver and is transported to kidney for its excretion. Urea cycle is the first metabolic cycle that was elucidated. Hans Krebs and Kurt Hanselit. Hence it is known as Krebs-Hanselit cycle or ornithine cycle. So we generally don't say urea cycle, say ornithine cycle or Krebs-Hanselit cycle, because it was first described by them, and it is the first metabolic cycle to be described. The individual reactions, however, described in more later on by Ratner. And let's talk about urea cycle. What is urea? First of all, urea has two amino acids, means two NH2 groups, amino groups, not acids, amino groups, NH2 groups. So one derived from ammonia and the other from aspartate. So how to remember how it is derived? It is derived from one from ammonia and the other from aspartate. Aspartate is very good, and it gives its a nitrogen group, amino group. Carbon atom is supplied by 2 carbon dioxide. Urea synthesis is a 5-step cyclical process with 5 distinct enzymes. The first 2 enzymes are present in mitochondria, while the rest are localized in cytosol. So urea cycle. Urea is having 2 amino acids and 1 carbon dioxide. 2 amino acids, 1 carbon dioxide. 1 carbon is there. 2 NH2 groups and 1 CH2 group. Okay, so CH2, NH2, NH2. Okay, so this carbon is derived from carbon dioxide, and 2 nitrogen groups, amino groups, then one from the ammonia and the other from another amino acid, that is aspartate. Aspartate donates its amino group. Aspartate is very wide-hearted, no? So synthesis of carbonyl phosphate synthase 1. Carbonyl phosphate synthase 1 of mitochondria catalyzes the condensation of NH4 plus ions with carbon dioxide to form carbonyl phosphate. Synthesis of carbonyl phosphate. So carbonyl phosphate synthase 1 of mitochondria catalyzes the condensation of NH4 plus ions with carbon dioxide to form carbonyl phosphate. This step consumes 2 ATP and is irreversible and rate limiting. CPS1 requires N-acetyl glutamate for its activity. Another enzyme, carbonyl phosphate synthase 2, involved in synthesis of carbonyl phosphate. Carbonyl phosphate synthase 1 of mitochondria catalyzes the condensation of NH4 plus ions with carbon dioxide to form carbonyl phosphate. This step consumes 2 ATP and is irreversible and rate limiting. This step consumes 2 ATP. So this step consumes 2 ATP. This step consumes 2 ATP and is irreversible and rate limiting. This step consumes 2 ATP and is irreversible and rate limiting. This step consumes 2 ATP and it is irreversible and it is rate limiting. ओके 2 ATPs चाहिए. माइटोकॉन्ड्रिया में 2 स्टेप्स होंगे एंड 2 एंजाइम्स हैं CPS1 एंड CPS2.
तो CPS1 requires N-acetyl glutamate, that is नाग होना उसको, and another enzyme carbamyl phosphate synthase 2 CPS2 involved in pyrimidine synthesis is present in cytosol. It accepts amino group from glutamine and does not require N-acetyl glutamate for its activity. The difference between CPS1 and CPS2 are given. तो CPS1 को नाग चाहिए और CPS2 नाग नहीं चाहिए. CPS2 को क्या चाहिए? ग्लूटामिन से ले लेगा वो अमाइनो ग्रुप, ग्लूटामिन, एंड डज नॉट रिक्वायर N-acetyl glutamate फॉर इट्स एक्टिविटी. द डिफरेंस बिटवीन, देखते हैं CPS1 और CPS2 के बीच में क्या डिफरेंस है. ओके ठीक है. तो जो CPS1 है इट इज़ इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल एंड CPS2 पार्टिसिपेट्स इन pyrimidine synthesis. CPS1 is a mitochondrial enzyme, CPS2 is a cytosomal enzyme. CPS1 ammonia serves as nitrogen donor and CPS2 glutamine is the nitrogen donor. In CPS1 NAG participates as cofactor and for CPS2 there is no cofactor. So for condensation of NH4 plus ions, ammonium ion and carbon dioxide to form carbamyl phosphate, CPS1 is required, and it is the mitochondria. It causes condensation of ammonium ion and carbon dioxide, H4 plus ions and carbon dioxide. This step consumes 2 ATPs. This step itself consumes 2 ATPs and it needs NAG also and acetyl glutamate. It is irreversible and rate limiting. एक बार घुस गए वापस नहीं जा सकते. Irreversible and is rate limiting. Okay, so now let's talk about the second step, that is formation of citrulline. तो citrulline बनाना है, हमने बनाया अभी तक कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाया. कार्बोमाइल फॉस्फेट से हम बनाएंगे citrulline. कार्बोमाइल फॉस्फेट से क्या बनाना है? अब citrulline बनाना है. कार्बोमाइल फॉस्फेट से अब क्या बनना है? citrulline. अब citrulline कैसे बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ citrulline. Citrulline synthesized by कार्बोमाइल फॉस्फेट and ornithine by ornithine transcarbamylase. Ornithine is regenerated and used in urea cycle. Therefore, its role is comparable to that of the oxaloacetate in citric acid cycle. Ornithine and citrulline are basic amino acids. They are never found in protein structure due to lack of codons. Citrulline produced in this reaction is transported to cytosol via transporter system. तो अब हम citrulline के बारे में बात करेंगे. तो जो citrulline है, citrulline is synthesized by from carbamyl phosphate and ornithine by ornithine transcarbamylase. By ornithine transcarbamylase. So जो citrulline कैसे बनेगा? Citrulline is synthesized from carbamyl phosphate and ornithine. Carbamyl phosphate and ornithine. Citrulline is synthesized from carbamyl phosphate. Citrulline is synthesized from carbamyl phosphate. Citrulline is synthesized from carbamyl phosphate and ornithine by carbamyl transcarbamylase. By ornithine transcarbamylase. Citrulline is synthesized from carbamyl phosphate and ornithine by ornithine transcarbamylase. Ornithine is regenerated and used in urea cycle. Therefore, its role is comparable to that of oxaloacetate in citric acid cycle. Ornithine is regenerated and used in urea cycle. Ornithine is regenerated and used in urea cycle. Ornithine is regenerated and used in urea cycle. Therefore, its role is comparable to that of oxaloacetate in citric acid cycle. Formation of citrulline. Citrulline synthesized from carbamyl phosphate and ornithine by ornithine transcarbamylase. Ornithine is regenerated and used in urea cycle. Ornithine is regenerated and used in urea cycle. Therefore, its role is comparable to that of oxaloacetate in citric acid cycle. So it's same as citric acid cycle में जैसे oxaloacetate करता है ऐसे ornithine भी करता है. तो ornithine and oxaloacetate same काम करता है. Ornithine and citrulline are basic amino acids. दोनों भी basic amino acids हैं, ornithine and citrulline. तो क्या हुआ कि जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो ऑर्निथाइन से मिला एंड बनाया citrulline. इसके लिए चाहिए ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बोमाइलेज.
ऑर्निथाइन को ट्रांसफ़र कर रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट से मिला रहा है एंड सिट्रुलिन बना रहा है। अब सिट्रुलिन बन गया हमारा। Therefore, its role is comparable to that of oxalase citric acid cycle. Ornithine is regenerated and used in urea cycle. Ornithine and citrulline are basic amino acids. They are never found in protein structure due to lack of codons. Codons नहीं है इसलिए ये हम बनाते नहीं हैं, अपनी बॉडी बनाती नहीं है, प्रोटीन स्ट्रक्चर में मिलता नहीं है, प्रोटीन्स में नहीं होता बिकॉज इनका कोई कोडॉन नहीं है. Citrulline produced in this reaction is transported to cytosol by transporter system. सिट्रुलिन जो बना है इस ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसॉल बाय ट्रांसपोर्टर सिस्टम से सिट्रुलिन साइटोसॉल में आ गया. अब साइटोसॉल में सिट्रुलिन आने के बाद क्या हुआ, अब हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट. आर्जिनोसक्सिनेट तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाया. सेकंड स्टेप सिट्रुलिन बनाया. कैसे, ऑर्निथाइन माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल से लिया, माइटोकॉन्ड्रिया में लाया और कार्बोमाइल फॉस्फेट कार्बोमाइलिस से मिला के सिट्रुलिन बना दिया. अब सिट्रुलिन को हम भेजेंगे साइटोसोल में बाय ट्रांसपोर्टर सिस्टम. उसके बाद सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट. अब हम बनाएंगे आर्जिनोसक्सिनेट. अब आर्जिनोसक्सिनेट बनाएंगे तो आर्जिनोसक्सिनेट में क्या होगा, सक्सिनेट आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस कंडेंसेस सिट्रुलिन विद एस्पार्टेट टू प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट. सो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस synthesis of आर्जिनोसक्सिनेट synthase condenses citrulline with aspartate to produce arginosaccinate. Arginosaccinate synthase condenses with citrulline. तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस क्या है, सिट्रुलिन से साथ मिलेगा एंड आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा. जो आर्जिनोसक्सिनेट विद एस्पार्टेट, तो सिट्रुलिन को मिलाएगा एस्पार्टेट से बिकॉज एस्पार्टेट को अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट करना है टू प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट. अब आर्जिनोसक्सिनेट कौन बनाया, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस क्या किया, सिट्रुलिन और एस्पार्टेट से मिला के आर्जिनोसक्सिनेट बनाया. फिर सेकेंड अमाइनो ग्रुप ऑफ करेगा. फर्स्ट वाले स्टेप में 2 ATP डायरेक्टली ले रहा था, यहाँ पे 1 ATP लेगा और 1 ATP लेने के बाद AMP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकालेगा. ठीक है. अब क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट. अब आर्जिनोसक्सिनेट जो बना उसको हम तोड़फोड़ करेंगे. तो आर्जिनोसक्सिनेज जो है वो क्लीव्स आर्जिनोसक्सिनेट टू गिव आर्जिनाइन एंड फ्यूमरेट. अब बना 2 अमीनो एसिड दैट इज आर्जिनाइन एंड फ्यूमरेट. ठीक है, आर्जिनाइन एंड फ्यूमरेट बना. फ्यूमरेट लिबरेटेड हियर प्रोवाइड्स अ कनेक्टिंग लिंक विद TCA साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्सेट्रा. जो फ्यूमरेट यहाँ पे बना वो TCA साइकिल के साथ मिलेगा एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा. ठीक है. अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. Arginase is the 5th and final enzyme that cleaves arginine to yield urea and ornithine. So जो arginase है, it is the 5th and final enzyme that cleaves arginine to yield ornithine and urea. तो arginase is the 5th and final enzyme that cleaves arginine to yield urea and ornithine. तो जो arginase है वो एक 5th and final enzyme है जो क्लीव करेगा Arginase is the 5th and final enzyme that cleaves arginine to yield urea and ornithine. Formation of urea. Arginase is the 5th and final enzyme that cleaves arginine to yield urea and ornithine. Arginase is the 5th and final enzyme. तो जो arginase है, it is the 5th and final enzyme है एंड ये क्लीव करेगा arginine to yield urea and ornithine. अब ornithine को हमने रीजनरेट कर दिया. वैसे हम ऑक्सैलोएसिटेट को सिट्रिक एसिड साइकिल में रीजनरेट करते हैं. तो ornithine is generated enters mitochondria through a membrane transporter ornithine translocase for its reuse in the urea cycle. Hence, ornithine may be considered as a catalyst. Ornithine and lysine compete with arginine. They are competitive inhibitors. Ornithine and lysine compete with arginine. Ornithine and lysine
compete with arginine. अर्जिनाइन से compete करेंगे कॉम्पिटिटिव एनिमल. अर्जिनेस इज मोस्टली फाउंड इन लीवर. लीवर में मिलता है आपको अर्जिनेस. ठीक है, अर्जिनेस लीवर में. तो अर्जिनेस मोस्टली वाइल द रेस्ट ऑफ द एंजाइम फोर ऑफ यूरिया साइकिल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर टिश्यूज. बाकी के 4 है लेकिन अर्जिनेस आपको सिर्फ लीवर में. फॉर दिस रीजन अर्जिनाइन सिंथेसिस में अकर टू वेरिंग डिग्रीज इन मेनी टिश्यूज. तो अर्जिनाइन बन जाते हैं लेकिन अर्जिनाइन से यूरिया नहीं बन पाता. उसके लिए फिर उसको लीवर में आना पड़ेगा क्योंकि अर्जिनेस एंजाइम सिर्फ लीवर में है. अर्जिनाइन सिंथेसिस में अकर टू वेरिंग डिग्रीज इन मेनी टिश्यूज बट ओनली लीवर कैन अल्टीमेटली प्रोड्यूस टू यूरिया. अब एनर्जेटिक्स देखते हैं. तो यूरिया साइकिल इज इरिवर्सिबल एंड कंज्यूम्स 4 ATP. यूरिया साइकिल एक इरिवर्सिबल साइकिल है और यहाँ पे हम 4 ATP आराम से बनाते हैं. तो यूरिया साइकिल इज इरिवर्सिबल. यूरिया साइकिल एक इरिवर्सिबल साइकिल है और इसमें हम 4 ATPs बनाते हैं. और जो 4 ATPs हम बनाते हैं बनाते नहीं हैं, कंज्यूम करते हैं. बनाना, कंज्यूम करते हैं. 2 करके कंज्यूम करते हैं. 2 ATP आर यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट and 1 ATP is converted to AMP in organic phosphate to produce arginosuccinase which equals to 2 ATP. Hence 4 ATP are actually consumed. तो आपको अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्पार्टेट और 3 ATP देना होगा. 3 ATP देना होगा. तो यूरिया, फ्यूमरेट और 2 ADP and 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस AMP and 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा. ओके, तो ये हुआ. दिस आर द एनर्जेटिक्स. ये बात हुई एनर्जेटिक की. ठीक है, हैप्पी. तो 5 स्टेप्स में होता है. यूरिया क्या है? NH2 CH2 NH2 यूरिया. 2 NH2 साइड में, बीच में CH2. एक NH2 आया अमोनियम आयन से और एक NH2 अमाइनो ग्रुप आया एस्पार्टेट से. कौन है? एस्पार्टेट. तो एस्पार्टेट अपना अमाइनो ग्रुप देगा, अमोनियम आयन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करना पड़ेगा. कार्बन एटम का सोर्स है वो. 5 स्टेप में होगा. पहले 2 एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में फाउंड होते हैं. तो पहले 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और बाकी के 3 स्टेप साइटोसोल में होंगे. तो पहले हमने क्या करना है? कार्बोमाइल फॉस्फेट का सिंथेसिस करना है. कार्बोमाइल फॉस्फेट का सिंथेसिस तो आपको याद रखना, जैसे यूरिया साइकिल आपके दिमाग में आ रहा है आपको याद रखना है ये पॉइंट्स कि जो यूरिया है वो किससे बना है? अमोनियम आयन से बना, NH4 प्लस आयन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक दूसरा अमीनो ग्रुप कहाँ से आएगा? एस्पार्टेट से. ठीक है, ये एक पहला पॉइंट याद रखना है. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट साइटोसोल में है. जो 4 एंजाइम्स हैं वो हर टिश्यू में मिलेंगे लेकिन जो अर्जिनेस जो 5वां एंजाइम है वो सिर्फ लीवर में मिलेगा. ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेप है, पहली बात हमें क्या करना है? अमोनियम आयन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंडेंस करना है. कंडेंस करने का काम कौन करेगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस. क्योंकि बनेगा क्या? कार्बोमाइल फॉस्फेट. कार्बोमाइल फॉस्फेट को बनाने के लिए कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस यूज़ करना पड़ेगा जिसको अमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंडेंस करते हैं. यहाँ पे हमें 2 ATP देना होगा और नाग देना होगा, एसिटाइल ग्लूटामेट. ठीक है, नाग की ज़रूरत होती है. और जो पहला स्टेप है वो खुद ही इरिवर्सिबल स्टेप है और रेट लिमिटिंग स्टेप है. ठीक है, CPS1 की तरह और एक एंजाइम होता है CPS2 जो पिरिमिडीन सिंथेसिस में काम में आता है. और यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप डोनर होता है वो ग्लूटामीन होता है. एसिटाइल ग्लूटामेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं. सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो ऑर्निथाइन से मिलता है. जो साइटोसोल में है माइटोकॉन्ड्रिया में आता है बाय ऑर्निथाइन ट्रांसलोकेस. ऑर्निथाइन ट्रांसलोकेस की मदद से वो माइटोकॉन्ड्रिया में आता है साइटोसोल से. और उसके बाद जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो क्या करता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथाइन के साथ मिलके सिट्रुलिन बनाता है. एंजाइम कौन सा है? ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बोमाइलेज. उसके बाद सिट्रुलिन ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसोल में. फिर साइटोसोल में सिट्रुलिन मिलता है. किससे मिलता है? सिट्रुलिन एस्पार्टेट से. एस्पार्टेट से मिलके बनाता है आर्जिनोसक्सिनेट बाय द एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस. यहाँ पे भी एक ATP लेता है लेकिन उसको कैसे तोड़ता है? AMP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में.
फिर आर्जिनोसक्सिनेट को हम क्लीव करेंगे, क्या बनाएंगे, आर्जिनिन बनाएंगे एंड फ्यूमरेट बनाएंगे। फ्यूमरेट चला जाएगा टीसीए साइकिल की तरफ, और जो आर्जिनिन है वो ऑर्निथाइन और यूरिया में कन्वर्ट होगा। ऑर्निथाइन रीजनरेट होगा और यूरिया बनेगा। जो एंजाइम है आर्जिनेज सिर्फ लीवर में होता है, बाकी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में नहीं होता। तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस, उसके बाद आर्जिनोसक्सिनेज, हम आर्जिनोसक्सिनेट को तोड़ते हैं बाय आर्जिनोसक्सिनेज, एंड उसके बाद फ्यूमरेट बनता है। फ्यूमरेट टीसीए साइकिल की ओर चला जाता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराता है। ठीक है, एनर्जेटिक्स की बात करें तो 4 एटीपी कंज्यूम होते हैं। पहले तो हमें अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड को कंडेंस करने के टाइम पे 2 एटीपी यूज़ होता है, और जब हम आर्जिनोसक्सिनेट बनाते हैं तो वहाँ पे भी 1 एटीपी को एएमपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की उसमें तोड़ा जाता है, विच इज़ सेम एज 2 एटीपी। तो यहाँ पे 4 एटीपी कंज्यूम होता है। ओवरऑल एनर्जेटिक्स लिखूँ मैं तो NH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एस्पार्टेट प्लस 3 एटीपी गिव राइज टू यूरिया, फ्यूमरेट, 2 एडीपी, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एएमपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दैट इज़ पीपीआई क्या होता है, पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट को बाद में हम कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं पीपीआई। अब हम बात करते हैं कि हम यूरिया साइकिल को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, द फर्स्ट रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 is itself a rate limiting reaction or committed step in urea synthesis. CPS1 is allosterically activated by N-acetyl glutamate and NAG. It is synthesized from glutamate and acetyl-CoA by synthase and degraded by a hydrolase. The rate of urea synthesis in liver is correlated with the concentration of acetyl glutamate. So it depends on the concentration of acetyl glutamate. High concentration of arginine increase NAG. The consumption of a protein-rich meal increases the level of NAG in liver, leading to enhanced urea synthesis. तो ज़्यादा प्रोटीन रिच मील लोगे, ज़्यादा नाग रहेगा, ज़्यादा आर्जिनिन रहेगा। नाग किससे बनता है, ग्लूटामेट और एसिटाइल कोए से बनता है, और एंजाइम सिंथेस चाहिए। डिग्रेड कैसे होता है, डिग्रेड होता है हाइड्रोलेज से। तो रेट ऑफ यूरिया सिंथेसिस इन लीवर इज कोरिलेटेड विद कंसंट्रेशन ऑफ नाग। हाई कंजम्पशन ऑफ आर्जिनिन इंक्रीज नाग। This consumption of a protein-rich meal increases the level of NAG in liver, leading to enhanced urea cycle. Carbamyl phosphate synthase 1 and glutamate dehydrogenase are localized in the mitochondria. जो carbamyl phosphate synthase 1 है, carbamyl phosphate synthase 1 जो है, और glutamate dehydrogenase are localized in the mitochondria. They coordinate with each other in the formation of an NH3 and citylization for the synthesis of carbamyl phosphate. The remaining 4 enzymes of urea cycle mostly controlled by the concentration of their respective substrates. अब हम बात करते हैं disposal of urea. Urea produced in the liver freely diffuses and is transported in blood to kidneys and excreted. A small amount of urea enters the intestine where it is broken down to carbon dioxide and NH3 by the bacterial enzyme urease. This ammonia is either lost in the feces or absorbed into the blood. Renal failure, the blood urea level is elevated, uremia, resulting in diffusion of more urea into the intestine and its breakdown to ammonia. Hyperammonemia increases blood ammonia linked to uremia is commonly seen in patients of kidney failure. अब हम बात करते हैं metabolic disorders of urea cycle. The clinical symptoms associated with defect in urea cycle enzymes include vomiting, lethargy. The clinical symptoms associated with the defect in urea cycle enzymes include डिफेक्ट होता है अगर यूरिया साइकिल के एंजाइम्स में, सिम्टम्स होता है वोमिटिंग, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, एटैक्सिया, मेंटल रिटार्डेशन यूरिया एक्यूमुलेट होने की वजह से. Metabolic defects of urea cycle are given. All the disorders in which result in hyperammonemia leading to toxicity. Hyperornithinemia,
हाइपर एमोनीमिया, हाइपर होमोसिट्रिलिनुरिया syndrome, HHS syndrome. It is an autosomal recessive disorder due to a defect in the enzyme ornithine translocase. ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर एक होता है जो किस वजह से होता है, डिफेक्ट इन द एंजाइम ऑर्निथाइन ट्रांसलोकेज, ऑर्निथाइन ट्रांसलोकेज की वजह से। तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स इन यूरिया साइकिल देखें तो हाइपर एमोनीमिया टाइप 1, हाइपर एमोनीमिया टाइप 2, सिट्रुलिनीमिया, अर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड्यूरिया, हाइपर अर्जिनिनीमिया। ठीक है, हाइपर अमोनीमिया टाइप 1, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1। तो बात करते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप 1, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1, कैरेक्टरिस्टिक हाईली एलिवेटेड ब्लड अमोनिया और मेंटल रिटार्डेशन। हाइपर अमोनीमिया टाइप 2, ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोमाइलेज, इंक्रीज्ड अमोनिया एंड ग्लूटामिन इन ब्लड एंड यूरिन। Citrullinemia, arginosuccinate synthesis, high blood concentration of ammonia and citrulline. Arginosuccinic aciduria, arginosuccinase, elevated arginosuccinate in blood and urine. Hyperarginemia, arginase, increased arginine in blood, cerebrospinal fluid and urine. तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स इन यूरिया साइकिल देखें तो हाइपर अमोनीमिया जब भी अमोनिया बढ़ जाता है, टाइप 1 और टाइप 2 होता है। एंजाइम कौन सा होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 होता है फॉर टाइप 1, और टाइप 2 के लिए ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोमाइलेज। फिर आर्जिनेस। तो अगर आपको बॉडी में डिफिशिएंसी है कार्बोमाइल फॉस्फेट, मतलब हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 में क्या होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 की डिफिशिएंसी होती है। ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोमाइलेज की डिफिशिएंसी की वजह से हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 होता है। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस की वजह से सिट्रुलिनीमिया होता है, क्योंकि क्या रहता है, सिट्रुलिन आर्सपेटेट से मिलकर आर्जिनोसक्सिनेट नहीं बना पाता, तो सिट्रुलिन एक्यूमुलेट होता है। आर्जिनोसक्सिनेस में क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, तो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड्यूरिया। आर्जिनेस में क्या होता है, हाइपर आर्जिनीमिया, आर्जिनेट बढ़ जाता है, राइट, आर्जिनिन बढ़ जाता है, तो हाइपर आर्जिनीमिया हो जाता है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखते हैं। हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 में क्या होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस की डिफिशिएंसी होती है, मतलब अमोनिया में आना कार्बन डाइऑक्साइड कंडेंस नहीं हो पाते, इस वजह से अमोनिया का जो ब्लड में है लेवल वो बढ़ जाता है और एक मेंटल रिटार्डेशन होता है। ठीक है, अब हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 में जो ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोमाइलेज है उसकी डिफिशिएंसी होती है, और यहाँ पे अमोनिया का लेवल इंक्रीज़ होता है, ग्लूटामिन इन ब्लड एंड यूरिन, ग्लूटामिन बढ़ जाता है बिकॉज वो ऑर्निथाइन से मिल नहीं पा रहा, इस वजह से ग्लूटामिन इन ब्लड एंड यूरिन इंक्रीज़ होता है, अमोनिया भी इंक्रीज़ होता है। सिट्रुलिनीमिया में क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस की डिफिशिएंसी होती है, अमोनिया एंड सिट्रुलिन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है। आर्जिनोसक्सिनेट एसिड्यूरिया में आर्जिनोसक्सिनेस डिफिशिएंसी होती है, जहाँ पर एलिवेटेड आर्जिनोसक्सिनेट होता है। और हाइपर आर्जिनीमिया में आर्जिनिन एक्यूमुलेट होता है ब्लड में, और वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और यूरिन में आता है। ठीक है, तो ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दी कौन सी चीज़ कहाँ से बनती है। जैसे कि हमारे पास ग्लाइसिन है,
ग्लाइसिन के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट से क्रियाटिन, ग्लूटाथियोन, हीम, प्यूरिन, कंजुगेटेड बाइल एसिड। टायरोसिन से थायरॉक्सिन, ट्राई आयोरोथायरोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, मेलानिन। तो अगर आपको डोपामिन चाहिए, आप खुश रहना चाहते हैं, तो आप लीजिए टायरोसिन, क्योंकि टायरोसिन से आपको डोपामिन मिलेगा, मेलानिन लेकिन आप मेलानिन भी मिलेगा। ट्रिप्टोफैन, NAD+, NADP+, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन बनेगा। मिथ्योनिन, एक्टिव मिथ्योनिन, क्रियाटिन, एपिनेफ्रिन, पॉलीअमीन्स। सिस्टीन, ग्लूटाथियोन। तो ग्लूटाथियोन दो लोग बना सकते हैं, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में कमी है, सिस्टीन है, सिस्टीन ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लूटाथियोन। टॉरिन कोएंजाइम है, एक्टिव सल्फेट। हिस्टिडीन, हिस्टामिन। आर्जिनिन, क्रियाटिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। आर्जिनिन से क्या बनेगा, क्रिएटिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ग्लूटामिन से गामा माइनोब्यूटेरिक एसिड, ग्लूटामिन, प्यूरिन, aspartate, beta alanine. Okay, so let's end here. Thank you.